Hello dear kids, Namaskar. How are you all? I hope you all are fine and you all have enjoyed your Diwali vacation. Yes, so now dear kids, it's time to get back to our studies, right? Our video classes. So from today we will start our EVS video class. Welcome back to our video class. So now say me where we have stopped, right? हमने कितना study कर लिया है? Which chapter we have completed of PA2 syllabus? Yes, we have completed chapter number 8, chapter number 9 and chapter number 10, right? Our chapter number 11 was remaining. So we will start with chapter number 11, that is light, sound and force. What is the name of the chapter? Light, sound and force. So now let's discuss the learning objective of this chapter. Right? What is the learning objective of this chapter? जब हम ये chapter पूरा finish कर लेंगे, so I will be expecting something from you all, right? कि आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये समझ में आ जाना चाहिए, ये स्टेट समझ में आ जाना चाहिए. व्हाट इज शैडो, हाउ शैडो फॉर्म, राइट? देन व्हाट फोर्स इज, व्हाट फ्रिक्शन इज, एंड देन हाउ फ्रिक्शन हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ. सी डियर किड्स, दीज आर द न्यू वर्ड्स, राइट? आपने कभी भी फ्रिक्शन के बारे में, फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है. So these are the new words for you all, and these things we are going to learn in this chapter. Okay? हम पढ़ेंगे कि force क्या है and friction क्या है, right? And at the end of the chapter आपको समझ में आना चाहिए कि what is force and what is friction and how friction help us in our day to day lives, right? सी लाइट हमें हेल्प करता है डे टू डे लाइफ में, एंड आपको उसका एग्जाम्पल भी पता है. साउंड ऑल्सो, यू ऑल आर अवेयर ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइट एंड साउंड. बट व्हाट अबाउट फोर्स? फोर्स इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, न्यू थिंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट? सो वी विल लर्न अबाउट फोर्स एंड फ्रिक्शन. Then also at the end you should be identify what are luminous and non-luminous object, right? Luminous object कौन से हैं and non-luminous object कौन से हैं. Then also about opaque objects, transparent object and translucent object. See, these all are the new words. Yes, these all are new words for you and we all are going to learn in this chapter. Then also about pleasant and unpleasant sound, right? Sounds are of two types. Pleasant means what? जो हमें सुनना पसंद हो, right? म्यूजिक बजाए तो आप सबको पसंद आएगा. But what about horn? अगर कोई बहुत जोर जोर से हॉर्न बजाए, सो वो हमें पसंद नहीं आता है, राइट? दैट आर कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड. एंड ऑल्सो अबाउट नॉइज, राइट? सो दीज आर द थिंग्स वी ऑल आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट? एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, कौन से पॉइंट समझ में आने चाहिए. ओके? So let's get started. We will start with the new words of this chapter. New words you all are going to write in your notebook. Okay? So come on page number 117. Let's discuss the new words of this chapter. The number first is luminous object. Okay? So what is luminous object? Object that emit light.
राइट एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लाइट गिव आउट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो व्हाट आर लुमिनियस ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस emits light, they are called luminous object. Then next is source of light, sources of light. Okay, next is sources of light. See, we can say source of light, but यहाँ पे s extra दिया है. Yes, you can see this sources. So that's why we will pronounce it sources of light. Next is candles. Okay, candles, candles. Then torchlight, torchlight. Non-luminous object. See, luminous object means क्या था dear kids? जो ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, राइट? बट नॉन ल्यूमिनियस क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं करता है. ओके, मीनिंग समझ में आ गया आपको? लुमिनियस ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट, and non-luminous object means the object that do not emit light. Okay, and the examples are paper, pencil. Okay, next is opaque. Okay, OPAQUE. How you will pronounce it? Opaque, opaque objects. Then next, transparent. Okay, here, transparent. See, please underline this in your textbook and then you will write in your notebook, fair notebook. Okay, अभी underline कर लो, वीडियो के साथ साथ ही आपको underline कर लेना है. Then at the end, at your home, at the time of homework, you can write in your notebook easily. Okay, the next is clear glass tumbler, clear glass tumbler. Then clear plastic ruler. Okay, what is the next new word? Clear plastic ruler. Next is translucent. Okay, where we are? Here, translucent. Next, window panes, wax papers, sunglasses. See, these are the example of translucent object. While I'm at the time of explaining, I'm going to explain you what is translucent object. Okay, तब मैं आपको समझाऊंगी उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. बट नाउ कीप इन माइंड दैट विंडो पेन्स, वैक्स पेपर एंड सनग्लासेस आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, कम ऑन पेज नंबर 118. Essential. What is the new word here? Essential. Essential means important, right? Essential means important. Now come on page number 119. See, on page number 118 there is only one new word, right? अब 119 पे आ जाओ. Sound. Okay, the new word is here sound. Then unnecessary. Unnecessarily. See, unnecessarily means what? जो काम हमें नहीं करना है फिर भी वो काम करते हैं, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? unnecessary. अगर आपके मम्मा ने आपको कहा कि चॉकलेट नहीं खानी है, बाहर खेलने अभी आफ्टरनून में नहीं जाना है, फिर भी आप जाते हो, राइट? उसको क्या कहा जाएगा?
unnecessary. Then next is force. Force. Come on page number 120. Friction. Okay. How you will pronounce friction, and what is the spelling of friction? F-R-I-C-T-I-O-N. Friction. So now come on page number 121. Prevents. Prevents. Then slipping or sliding. Right? ये वाला C. Slipping C. What is the spelling of slipping? S-L-I-P-P-I-N-G. Okay, that slipping not. सोने वाला slipping नहीं. Right? जब हम वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं, राइट, फ्लोर पे स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, ये वाला वो स्लिपिंग है. एंड द नेक्स्ट इज स्लाइडिंग. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्लाइड, राइट? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सबने अंडरलाइन कर लिया है टेक्स्ट बुक में. एंड आपको ये जो अंडरलाइन आपने वर्ड्स किए हैं, दिस यू ऑल आर गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक. दिस इज योर होमवर्क. सो नाउ डियर किड्स, मैंने आपको लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब समझाया था. यस, आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग डियर किड्स? सी, द ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट. एंड उसका अपोजिट, ओके, उसका अपोजिट मीन्स क्या? जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, दैट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. सो नाउ डियर किड्स, आई विल गिव यू वन आइडियल क्वेश्चन टू यू ऑल. राइट, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आइडियल क्वेश्चन देती हूँ. सी, जो आपको थिंक करना है, सोचना है, फिर मुझे उसका आंसर देना है. ओके, सो नाउ डियर किड्स, से मी, मून इज अ लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. जो मून है वो क्या है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है? सी, इफ यू आर सेइंग दैट मून इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट, you should have a reason, right? Give reason. You have to give me reason that why moon is luminous object. And if you're saying that moon is not luminous object, so उसका भी आपके पास reason होना चाहिए that why moon is non-luminous object. Okay? And ये आंसर आप मुझे कैसे दोगे? इन अवर व्हाट्सएप, राइट? आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, राइट? आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन. मून इज अ लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. गिव रीजन. यू हैव टू गिव मी रीजन. इफ यू आर सेइंग दैट मून इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट, you should have a reason. And if you are saying that moon is non-luminous object, you should have reason why I have said non-luminous object or why I have said that it is luminous object. You should have a reason, right? Understood this much? See, you have to answer this me personally, right? कोई भी WhatsApp वाले ग्रुप, स्कूल WhatsApp वाले ग्रुप में नहीं मुझे आंसर कहेगा, right? आप मुझे पर्सनली आंसर कहोगे इसका, right? First of all, you will think and then you will let me know. So now let's start the chapter with the activity which is given on page number 116. Right? Come on page number 116. Take out your pencil. Yes, because for this activity, here one crossword puzzle is given. So we need to solve it.
So take out your pencil and eraser. Ma'am is going to wait for you. Some sources of light are natural and some are man-made. See dear kids, जो लाइट होती है, राइट, लाइट के जो सोर्स है, कोई सोर्स नेचुरल है एंड कोई सोर्स मैन मेड है, राइट, कोई सोर्स नेचुरल है, नेचर में है, एंड कोई कोई सोर्स, कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैन मेड है, जो हमने बनाए हैं, राइट, जो मैन ने प्रोड्यूस किए हैं. ये भी आपको ध्यान रखना होगा, राइट. जो लाइट के सोर्सेस हैं वो नेचुरल भी है एंड मैन मेड भी है. सो नाउ डियर किड्स, कैन यू से मी वन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? Yes, sun, right? Moon, star. These are the example of natural source of light. Yes, जो हमने बनाए हैं क्या? नहीं. They are by the nature. God ने बनाए हैं. Yes, and some are man-made. जो man-made ने बनाए हैं. ऐसे objects जो man ने बनाए हैं. But हाँ, both are giving us लाइट. दोनों हमें क्या देते हैं? दे गिव्स अस लाइट, दे इमिट्स लाइट. यस और नो? सन में से भी हमें लाइट मिलती है एंड जो हमारे घर पे ट्यूबलाइट है उसमें भी हमें लाइट मिलती है. यस, सो दे बोथ गिव्स अस लाइट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ sources of light. The one is natural and the second is man-made. So here solve the crossword given below on the sources of light by looking at the picture clue. Okay, आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, राइट, उसका नेम लिखना है. Then circle only the man-made source of light. Only what you have to circle the man-made. Natural वाले को आप circle नहीं करोगे. You will only circle the man-made source of light. Okay, so let's start. First of all, we will see this is crossword puzzle. यहाँ पे across में हमें ये across में लिखने हैं and ये down side में लिखने हैं. Okay, we will start with number wise. So first is here. First one, what is this? See, you all have to identify it by the picture. So first one is torchlight, right? So write down there torchlight. Ma'am is also going to write. And see, आपको अभी साथ में ही लिखना है. Okay? So, you all have pencil in your hand. Let's write the first one, that is torchlight. See, this is downside, right? So, up find out one number from this crossword puzzle. Here it is, right? So, here we will write the spelling of torchlight. अगर आपने एक spelling mistake की, एक letter भी भूल गए, so आपका ये box empty रहेगा, कोई भी एक box empty रहेगा. So that is wrong. Okay. So don't make spelling mistake. Write correctly. I am writing the spelling of torchlight. You all will write in your textbook. What is the spelling? T-O-R-C-H then L-I-G-H-T. Torchlight. Done? Good. Now second one. Second one is here. But we have to write it across, right? हमें across में लिखना है, slant में लिखना है. So what is it? Yes, it is candle. So now write down the spelling of candle. C-A-N-D-L-E, candle. Is it completed? Good. So now let's come to third one. Third one, but it is in downside. So identified it by looking the picture. Yes, क्या है ये? It is lamp, right? It is lamp. So now we will write the spelling of lamp
L-A-M-P, lamp. L-A-M-P, lamp, written. Very good. Now come to number 4th. Number 4th आपको क्या दिख रहा है dear kids? Yes, it is bulb, right? So now write down the spelling of bulb. Find out where 4th one is. It is across or down, and then write the spelling of bulb. B-U-L-B-S, bulbs. See, bulbs we will write because it is plural. 2 है ना? That's why. Then now come to number 5th. Yes, it is very easy, right? ये तो आपको पता चल ही जाएगा, and you all know what is it. It is sun. So write down the spelling of sun. Next, number 6. Number 6 is moon, right? So write down there moon. M-O-O-N. See, M is already written, right? तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. See dear kids, ये क्रॉसवर्ड पजल आप लोग ने बहुत बार किया है, and you all are wonderful in this, right? आप सबको ये आता ही है. So no mistake. And the last sixth one we have completed, that is moon. And the last 7th one is stars, right? So there, write there stars. So here we have completed this activity. I hope you all have enjoyed it. So अब आपको हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमें दिए थे. पहले तो हमें क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना था, जो हमने फिल कर दिए बॉक्सेस. एंड द सेकेंड, वी हैव टू सर्कल दी मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. सी दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल. ओके, आपको सर्कल करना है जो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है उसको. यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसमें से मैं एक कर रही हूं. ओके, आई विल डू 1 and remaining you all have to do in your homework. So let me think, what is man-made source of light here? Yes, I got it, and let me circle it. So torchlight. Torchlight is man-made source of light. So मैम ने सर्कल ऐसे कर लिया है. In this way you have to do circle for the रेस्ट ऑफ इट. जो भी बच्चे हैं उसको आप सर्कल कर दोगे. ओके, गुड. सो डियर किड्स, नाउ कम ऑन पेज नंबर 117. सी, ये चैप्टर हमारा बाकी रह गया है PA2 सिलेबस का, राइट? सो वी विल कंप्लीट इट फास्ट एंड देन वी विल स्टार्ट अवर रिविजन. सी, इन द पेपर, यस पेपर मैंने आपको दे दिया है, आप लोग ने लिख भी लिया होगा, बट चैप्टर नंबर 11 आपका बाकी रहा होगा, राइट? इट्स ओके. जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए, राइट, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लिख लें, राइट, इसका पूरा हम रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद तो आपको ये चैप्टर आ गया होगा. यस, देन यू आर एबल टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. यू आर एबल टू फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड ऑल. यस, तब आप ये पेपर पे, जो आपका PA2 का पेपर है, उसमें आप लिखना. ओके, समझ में आई बात? ये चैप्टर बाकी रह गया था, इसीलिए आप लोग ने पेपर में नहीं लिखा होगा, राइट? इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके ट्रू और फॉल्स आपने रिमेन रखा होगा, राइट? इट्स रिमेनिंग. सो व्हाइल एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, फिर आप लोग पेपर में, PA2 के पेपर में लिख लेना. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 2 टॉपिक्स. फर्स्ट इज लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एंड द नेक्स्ट इज शेडो. ये 2 टॉपिक्स हम आज लर्न करने वाले हैं. सो कीप इन, बी हियर, आपका माइंड यहाँ पे हो, अच्छे से फटाफट समझ लो. ओके,
So now let's clear the first. Objects that emit light are called luminous objects. Luminous objects are also called sources of light. See, sources of light and luminous objects same है. कैसे same है dear kids? Source of light means क्या? पहले first of all let's clear the word sources of light. Sources of light means क्या? ऐसे objects जो light देते हैं. राइट एंड लुमिनियस ऑब्जेक्ट का भी मतलब मैंने आपको यही समझाया था. यस, द ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट, गिव लाइट, इट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड सोर्सेस ऑफ लाइट आर ऑल्सो सेम. ओके, अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट कैन बी नेचुरल और मैन मेड. लुमिनियस ऑब्जेक्ट नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है. यस और नो? क्योंकि देखो नेचुरल में भी लाइट प्रोड्यूस करने वाले हैं, सन है, स्टार्स हैं, एंड मैन मेड में भी मैन ने भी बनाए हैं. सो द सन, स्टार्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट. देन कैंडल्स, टॉर्च लाइट्स, बल्ब, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ man-made luminous object. Understand? Understand about natural luminous object and man-made luminous object? Now, next is object that do not emit light. ऐसे object जो light emit नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Non-luminous object. And what are the example? पेपर, पेंसिल, बुक, टेबल. इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है क्या? नो. यस, सो दैट्स वाई ये कैसे हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है. अब आप मुझे कहोगे कि मैम पेंसिल में वो पीछे हमारे आते हैं, आपने देखा होगा कि पेंसिल, टॉर्च वाली पेंसिल भी होती है, बट डियर किड्स वो टॉर्च उसमें फिक्स की जाती है. ओके, वो पेंसिल में पहले से लाइट नहीं होती है, उस पे ऊपर या फिर एक कैप होता है, वहां पे टॉर्च फिक्स की जाती है, लाइट फिक्स की जाती है, इसीलिए वो प्रोड्यूस होती है, लाइट निकलती है. आप कहते हो ना कि लाइट वाली पेंसिल लेनी है, सो क्या पेंसिल में लाइट है क्या? नो. ओके, उसमें फिक्स की गई है लाइट, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये पेंसिल वाली लाइट है. ओके, बट पेंसिल इज अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट ही है. वी कैन सी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को कब देख सकते हैं? जब उस पे लाइट फॉल होती है. यस, ऐसा ही ना. सी, हम एक रूम में बंद हो जाएंगे, राइट? क्या हम डार्क में कोई भी ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं क्या? नो. जब भी पूरे रूम में डार्क होता है, वहां पे कोई भी लाइट नहीं होती है, तो क्या हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बेड यहाँ पे है, कबर्ड यहाँ पे है, बुक्स वहां पड़ी है, टेबल वहां पे है? नहीं पता चलता. बट व्हेन वी ऑन द लाइट, जब हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल ऑन करते हैं, हम रूम में आके, डार्क रूम में आके ट्यूबलाइट या फिर बल्ब ऑन करते हैं. सो जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे रूम में, वो सारे कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है. जब उनपे ट्यूबलाइट की लाइट आएगी, एट दैट टाइम हम वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. नहीं तो हम देख पाते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट सी, राइट? अंडरस्टूड दिस टॉपिक? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शैडो. A shadow is a dark shape formed when an object blocks the passage of light. See, about shadow we have already learned in our standard 2. Right? Shadow क्या है? एक ऐसा डार्क पैच है, राइट? एक ऐसा डार्क शेप है जो कैसे फॉर्म होता है? जब एक ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है लाइट को पास होने से,
right? A shadow is always formed on the opposite side. Yes, opposite side में form होता है. What is the definition of shadow? It is a dark shape formed when an object blocks the passage of light. Two things आपको ये याद रखनी है. Okay? And the next is, it's always formed on the opposite side of the source of light. Objects that do not allow light to pass through them, they are called opaque object. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलाव नहीं करते हैं, लाइट को पास होने के लिए अलाव नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम opaque object. Opaque object cast a dark shadow because they do not allow light. है ना? opaque object कैसे शेडो फॉल करते हैं? डार्क शेडो, क्योंकि वो लाइट को पास होने ही नहीं देते हैं ना. इसीलिए क्या टेबल का शेडो होता है? यस, wooden tables, bricks, stones, these all are the example of opaque objects. Then compass box, books, इसमें से लाइट पास होती है क्या? हमारे खुद का भी शेडो बनता है. डू यू नो दैट? यस. नेक्स्ट इज objects that allow light to pass through them, they are called transparent objects. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलाव करते हैं लाइट को पास होने के लिए, जो ब्लॉक नहीं करते हैं, राइट? जो पैसेज ऑफ लाइट होता है उसको ब्लॉक नहीं करते हैं, सो दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. सो व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? जो लाइट को पास होने के लिए अलाव करते हैं. दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम एंड दे डू नॉट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, राइट? दे डू नॉट ब्लॉक, वो ब्लॉक करते नहीं है. पैसेज ऑफ लाइट जो है वो ब्लॉक नहीं करते हैं. एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल? ग्लास टम्बलर, प्लास्टिक रूलर, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. देन नेक्स्ट इज objects that allow light to pass through them only partially. Partially means what? थोड़ा सा अलाव करते हैं. So they are called translucent object. See, partially means क्या? एकदम थोड़ा सा. Translucent object cast a faint shadow as they are able to block the light only partially. Frosted glass window panes, wax paper and sunglasses are example of translucent object. See dear kids, opaque object में अगर ये पेंसिल यहाँ पे है, राइट? मैंने यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट दिया, सो ये पेंसिल का शेडो फॉर्म होगा. यस, आपने देखा होगा मेरी फिंगर की शेडो आ रहा है, राइट? सो ये पेंसिल का भी शेडो होगा. बट इसका ये कौन सी एग्जाम्पल में आएगा? सी, यू कैन सी दी शेडो ऑफ पेंसिल. सो पेंसिल मैंने यहाँ पे टॉर्च ऑन रखी है, इसीलिए आपको उसका शेडो दिख रहा है, राइट? सो ये जो पेंसिल है वो क्या कर रही है? लाइट को पास होने नहीं दे रही है, राइट? अगर ये लाइट को पास होने देती तो पेंसिल का शेडो फॉर्म होता नहीं होता, राइट? बट ये पेंसिल क्या कर रही है? पेंसिल ब्लॉक्स दी, पेंसिल डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास. यस, इट ब्लॉक द पैसेज ऑफ लाइट, इसीलिए इसका डार्क शेडो बन रहा है. सो ये कौन से एग्जाम्पल में आएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट? अंडरस्टूड? देन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में किसके एग्जाम्पल आएगा? यू कैन, आपने रूलर देखी होगी प्लास्टिक की, वो क्या करती है? अलाव करती है ना लाइट को पास होने, उसकी शेडो बनती है. आप चेक करना घर पे, प्लास्टिक की रूलर जो आप यूज करते हैं उसकी शेडो बनती है कि नहीं? नो, उसकी शेडो बनेगी अगर आप वो बहुत डार्क में है
तो शायद बन भी जाए. देन क्लियर ग्लास, जो ग्लासेस होते हैं हमारे, उसकी भी शेडोज नहीं बनते हैं. देन नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जो थोड़ी सी लाइट पास अलाव करने देते हैं. राइट, एकदम फेंट शेडो बनता है, एकदम क्लियर नहीं, डार्क नहीं, फेंट शेडो. Understood? So here we have completed our two topics, luminous and non-luminous object, and the next topic is shadow. See dear kids, if you have any doubt regarding these two topics, you can contact me. Okay? So we have completed page number 117. Now let's move to page number 118. To cast a shadow, it is essential to have a light source, an object and a surface such as a tabletop, floor or a wall. See, अगर हमें shadow बनाना है, right? If we want to cast a shadow, what is the things we will require? अगर surface नहीं होगा तो shadow कहाँ fall होगा? Right? Light source नहीं होगी तो क्या shadow बनेगा? नो, एंड वी नीड एन ऑब्जेक्ट. राइट, एक ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए जिसपे हम लाइट की सोर्स डालेंगे एंड फिर उस सरफेस पे उसका शेडो फॉल होगा. सो फॉर कास्टिंग अ शेडो वी विल, देर इज important things we will require. 3 things, that is source of light, okay, then an object and also a surface. फिर चाहे वो कोई भी हो, वॉल पे भी चलेगा, एंड फ्लोर, टेबल टॉप एक्सेट्रा. अंडरस्टूड? So here we have completed our today's CW. So dear kids, here one activity is given. This activity you all are going to perform in your homework, right? ये आपको घर पे परफॉर्म करनी है, होमवर्क में परफॉर्म करनी है. And if possible, you can share me your pics. Okay? What ये एक्टिविटी किस टॉपिक के ऊपर है? शेडो. Okay? What we have to do in this activity? We have to find which object cast a shadow. कौन से ऑब्जेक्ट में शेडो बनता है? Right? What you will need a torch, जो हमें लाइट ऑफ सोर्स है वो चाहिए. Then we will first of all say me what are the things we will need. हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, एंड एक सरफेस भी तो चाहिए होगा ना. यस, 3 थिंग्स वी विल नीड. सो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या ले रहे हैं? स्टील ग्लास टम्बलर, क्लियर ग्लास टम्बलर, एंड देन अ ट्रेसिंग पेपर, एंड सोर्स ऑफ लाइट टॉर्च ले लेते हैं. सरफेस क्या होगा? वॉल ले लो, फ्लोर ले लो. राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको इसके शेडो बनाने हैं एंड आपको चेक करना है कि किसकी शेडो फॉर्म हो रहा है, किसका शेडो कंप्लीटली फॉर्म हो रहा है, किसका शेडो फॉर्म ही नहीं हो रहा है, एंड किसका शेडो एकदम पार्शियली फॉर्म हो रहा है. यस, सो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है. Understood? So here we have completed our today's class, today's video class. If you have any doubt, you can contact me. So your today's homework is to write the new word and to perform that activity in your homework. I hope you will do that. Yes? Tomorrow we are going to learn about sound and force. Yes, and also about friction. Right? Sound के बारे में भी पढ़ेंगे, force के बारे में भी पढ़ेंगे, and also about friction we will learn. Till that, bye kids, take care. Have a good day.